بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہاڑوں کی سلطنت جولا پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد سلیم۔ ناظرین، ہم پروگرام احوال گلگت بلتستان میں یقیناً گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں اور گلگت بلتستان کے وسائل اور مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے انسانوں سمیت جنگلی حیات کے حوالے سے ہم نے پروگرامز کیے اور آج ہم آبی حیات کے حوالے سے پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ تو گلگت بلتستان میں فشریز کے حوالے سے کتنا پوٹینشیل ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں اس وقت کس طرح کی پیش رفت جاری ہے، اور یقیناً صوبائی حکومت نے اس وقت جہاں باقی جو منصوبوں پر کام کیا ہے وہاں فشریز کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے اس طرح کے منصوبوں کو بھی اہمیت دی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان کا نواحی علاقہ کارگا نالہ میں، اور کارگا نالہ یقیناً 20 نومبر سے 20 فروری تک یہاں پر دھوپ نہیں پڑتی ہے، اور یہاں پر فش فارمز موجود ہیں، ہیچریز بھی موجود ہیں کہ گلگت بلتستان میں مچھلی کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے جو مچھلیوں کی مختلف اقسام ہیں ان کی نسل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے اور کس طریقے سے بہتر مارکیٹنگ کی جا سکتی ہے، اور محکمہ فشریز اس حوالے سے کیا کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ڈائریکٹر غلام محی الدین صاحب کے حوالے سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر، میں آپ کو شو میں ویلکم کہتا ہوں۔ آپ بتائیے گا اس وقت فشریز ڈپارٹمنٹ فش کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، نسل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے کیا کر رہا ہے اور کتنی اقسام کی مچھلیاں ہیں اس وقت؟ محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ جناب عیسیٰ علیم صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ یہ کارگا ٹروٹ فش فارم ہے فیز 1 کے اوپر۔ اس میں ہم پہ ریمبو اور براؤن ٹروٹ دو مچھلیوں کی کلچرنگ کرتے ہیں۔ 1974 میں ہماری اس ڈپارٹمنٹ یہاں پر گلگت میں معرض وجود میں آیا تھا۔ اس وقت ہم فارسٹ کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں ایولیوشن ہو گئی اور ہمیں ایگریکلچر کے ڈائریکٹریٹ میں دے دیا۔ اس وقت ہم ایگریکلچر کے اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سیکٹر الگ ہے، ہمارا ڈائریکٹر الگ ہے، اور اس کے بعد سیکٹری صاحب ہمارے ایک ہی ہوتے ہیں، ALF سیکٹر ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ صاحب، اس سے پہلے یہ تھا کہ چونکہ آبادی بھی کم تھی اور پولوشن بھی نہیں تھا، تو اس حوالے سے یہ تھا کہ ہماری کنزرویشن کے اوپر ہمارا فوکس تھا پہلے۔ تو ہم صرف اور صرف نیچر کی مچھلی کو کنزرو کرتے تھے۔ ہمارے پاس تقریباً 17 قسم کی ہمارے پاس لوکل مچھلیاں ہیں جو کھانے میں ماشاءاللہ ٹروٹ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ باقی جو کلچر پریکٹس ہم کر رہے ہیں اس وقت یہاں پر، ہم ریمبو اور براؤن ٹروٹ کی کر رہے ہیں اور کارپ فش فارم کی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ مچھلیاں جو ہے ہم ڈاؤن سے لا کر یہاں پر صرف ریڈنگ کرتے ہیں۔ اس میں گراس کارپ ہے، کامن کارپ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ریڈ فش ہے، جس کو مطلب ہم اپنا آرنامنٹل فشز کہتے ہیں، جو ایکویریم وغیرہ میں کام آتی ہے، اس کو کھانے کے کام نہیں آتی ہے، وہ بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے پچھلے تقریباً 5 سال سے ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کرنا شروع کیا، چونکہ اب آبادی بھی بڑھ گئی ہے، پولوشن کی وجہ سے ہماری نیچر جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرائے ہو رہا تھا۔ ہم نے اپنا رخ جو ہے وہ پرائیویٹ اپنا اس کی کلچر کی طرف موڑ لیا، اور آج الحمدللہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سرکار کو خاطر خواہ انکم بھی جنریٹنگ ڈپارٹمنٹ میں آ گیا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں ماشاءاللہ تقریباً 218 ہمارے پاس اس وقت فش فارمرز کام کر رہے ہیں، اور ہمارے سرکاری سیکٹر میں ہمارے پاس 16 فش فارمز اور ہیچریز تھی، جن کو ہم ماڈل ٹروٹ فارمز کا نام دیتے ہیں، ٹروٹ فارم اینڈ ہیچری ان گلگت بلتستان کا نام دیتے ہیں۔ وہ 16 تھے، اور یہ پروجیکٹ ہمیں مل گیا اس گورنمنٹ کے، پریزنٹ گورنمنٹ نے ہمارے اوپر انتہائی جو ہے مہربانی کی ہے۔ فرسٹ آف آل آتے ہوئے 100 ڈیز کے اندر ہمیں انہوں نے $500 بلین کا پروجیکٹ دے دیا۔ اس کے ثمرات اس طرح سامنے آئے کہ ہمارے پاس 16 فش فارمز تھے، 16 فش ہیچریاں تھیں، اس کو ہم نے 2 اور بنا دیے، ایک سوگا میں جو خپلو میں ہے اور ایک جو ہے شگر میں۔ خپلو والی اس سال ہمارے فلاگ میں شامل ہو گئی، یعنی آپریشنل ہو گئی، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو 7 ہیچریز تھے ایگزسٹنگ، ان کی حالت ناگفتہ بہ تھی، کیونکہ ہمارے پاس ADP کے بہت زیادہ لمیٹڈ ہمارے پاس پروجیکٹ ہوتے تھے۔ اب PSDP کے پروجیکٹ سے ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم ان سب کو اپ گریڈ کیا۔ پچھلے سال ہم نے 1.4 ملین بچہ جو ہے وہ ہم نے لوگوں میں تقسیم کیا، اور اس سال جو ہے انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ 20 ملین ہے، یعنی ہم اپنا 20 لاکھ تک بچے جو ہے ہم پرائیویٹ سیکٹر میں دیں گے، اور باقی ماندہ جو ہے ہم تقریباً 2.5-3 لاکھ تک ہم اپنے فارمز میں رکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ عیسیٰ صاحب آپ نے بتایا ہے، یہاں پر ہمارے پاس دو مچھلیاں جو پائی جاتی ہیں، اس میں ریمبو ٹروٹ ہے۔ ریمبو ٹروٹ کو ہم کلچر کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کی یہاں پروپریشن کر کے ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیتے ہیں، وہاں پر لوگ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، وہ سبسیڈائز ریٹ پہ ہم 6 روپے کا ایک بچہ دیتے ہیں۔ اسی سبسیڈائز ریٹ کے اوپر کر کے بھی ہمیں تقریباً 2.25 کروڑ تک ہم نے ڈائریکٹ ریونیو جنریٹ کیا ایکسچیکر سے، اور اس کے علاوہ جو ہے انڈائریکٹ جو ہے وہ 200 فش فارمز میں اگر ایوریجلی آپ دیکھ لیں تو 2 ٹن مچھلی جو ہے GBRSP کے سروے کے مطابق ہر ایک فارم کی ایوریج جو پروڈکشن ہے وہ 2 ٹن تھی، تو اسی حساب سے جو ہے وہ
तकरीबन 400 टन मछली पैदा होती है, जो कि हमारे जब मार्केट में आती है तो ये करोड़ों रुपए क्या अरबों रुपए का ये काम कर जाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आज गिलगित शहर में आप गाहे बगाहे आप देखें, जहाँ पर बड़े जनरल स्टोर्स हैं वहाँ पर आपको हमारी अवेलेबिलिटी के जो है वो ट्राउट अवेलेबल के आपको बैनर से नजर आएंगे। तो आने वाले वक्त में हम तकरीबन हमारा टारगेट ये है, इस साल भी हमें एडीपी से अच्छे खासे तकरीबन 13 प्रोजेक्ट के साथ सब हमें मिले हैं, जिसमें हम ज़्यादातर हम अपने फिश फार्म्स को डेवलप करेंगे और प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट अप करेंगे, और इस तरह हमारी प्रोडक्शन जो है इस वक्त से इंशाल्लाह डबल हो जाएगी। और ये इस डिपार्टमेंट की एक लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए, यानी इस वक्त मेरे पास जो है 10 असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, 2 डिप्टी डायरेक्टर हैं, 2 SROs हैं, फिशरी रिसर्च अफसर हैं, और जो है मैं डायरेक्टर आपके सामने बोल रहा हूँ। इस लिमिटेड फोर्स को लेते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी खासी हमने अचीवमेंट की है, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम इससे भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। जो गवर्नमेंट से हमारे टारगेट फिक्स हो गए हैं, इंशाल्लाह हम उससे डबल अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। थैंक्स। अच्छा सर, ये बताइएगा कि चूंकि गिलगित बल्तिस्तान आज भी मुल्क का दूर उफ्तादा और पसमानदा इलाका है, तो गिलगित बल्तिस्तान की आबादी मुख्तलिफ नालों में, जिस तरह आज हम कारगिल नाला में मौजूद हैं, इसी तरीके से आबादी मुख्तलिफ नालों के अंदर बसती है, तो यकीनन वहाँ पर रोज़गार के हवाले से बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, लोग हिजरत करने पर मजबूर होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में फ़िश फार्म को हम डेवलप करके हम अपने मईशत को किस तरीके से मुस्तहकम कर सकते हैं, और इनिशियली हमें कम से कम कितना सरमाए की ज़रूरत है? इसा साहब, इस काम के लिए जहाँ तक आप सरमाई की बात करते हैं, जहाँ तक फिश फार्म की प्रोपगेशन की आप बात करते हैं, बेशक डिपार्टमेंट लिमिटेशंस में है, डिपार्टमेंट के पास वसाइल कम है, डिपार्टमेंट के पास HR जो है वह कम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतने पोटेंशियल्स दिए हुए हैं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ट्राउट के हवाले से कोल्ड वाटर फिश कल्चर हमारे पास मौजूद है, और इसके लिए हम बड़े पैमाने पर हम काम कर रहे हैं। बिरगल में तकरीबन एक ही बड़ा चश्मा है, उसके अंदर तकरीबन 28-30 फार्म जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं, और आप यकीन करें वहाँ हज़ारों लोग जो है वो इस्तेफादा कर रहे हैं, मार्केट में मछली आ रही है। इसी तरह हमारे पास तकरीबन जो है वो 218 फिश फार्म है, जिसमें सबसे ज़्यादा सिकरदू और गिजर में है, उसके बाद गिलगित में है। अस्तोर चूँकि थोड़ी सी हाइट में है, इस वजह से वहाँ पर हम लिमिटेशंस में हैं। बाकी चिरास में भी हमारी कोशिश है कि हम हर एक नाले के ऊपर जो है 8 से 10 फार्म 50 फार्म जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक अगर काम करेंगे तो आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ तकरीबन अगर 2000 तक हम चले जाएंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट का जो सबसे ज़्यादा बर्डन आ रहा है, मैं समझता हूँ ये डिपार्टमेंट ही इसी को मतलब सदाबाब करने का एक ज़रिया साबित होगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए, और हुकूमत पर बोझ बनने की बजाय, सरकार पर बोझ बनने की बजाय हम खुद अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। हम और लोगों को भी, हम बेरोज़गार लोगों को भी हम जॉब दे सकते हैं। तो इस तरह के मंसूबे हम कम सरमाए से लगा कर भी नदी नालों के अंदर हम अपनी मईशत को बेहतर बना सकते हैं। तो यकीनन ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में और महकमा फ़िशरीज़ के अंदर, फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमने आज इनकी ज़बानी सुना, और यकीनन हम सेक्रेटरी साहिबान और बाकी ज़िम्मेदारान से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए मछलियों का जो कारोबार है इसको प्रमोट करने के हवाले से आगे मुस्तकबिल में कितना स्कोप है, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। जी नाज़रीन, हम कारगिल के मुकाम पर हम मौजूद हैं, और इस वक्त हमारे साथ 2 सेक्रेटरी साहिबान मौजूद हैं, सेक्रेटरी सजाद हैदर साहब, सेक्रेटरी वर्क्स, और सेक्रेटरी खादिम हुसैन साहब LF के सेक्रेटरी हैं। तो दोनों से हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त अगर हम फ़िशरीज़ के हवाले से बात करें, फ़िशरीज़ को प्रमोट करने के हवाले से जो काविशें हो रही हैं, और इसका जो कितना स्कोप है गिलगित बल्तिस्तान में, और लोग अपनी मईशत को किस तरीके से मजबूत बना सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। सर, मैं आपको शो में वेलकम कहता हूं। तो आप बताएं, आपने फिशरीज़ को प्रमोट करने के हवाले से यकीनन आपकी बड़ी काविशें हैं। इस वक्त आप बेशक वर्क्स में चले गए हैं, लेकिन माजी में जब आप इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां आपके पास थी तो आपने खासा जो है वो वर्क किया है। तो आप बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने गिलगित बल्तिस्तान के जो इस वक्त बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और इस फिशरीज़ का जो स्कोप है मुस्तकबिल में, ये क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहाँ पे अल्लाह ताला ने गिलगित बल्तिस्तान को इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज दे दिए हैं, वहाँ पे अगर मैं सबकी बात करूँगा तो टाइम ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़िशरीज़ एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर हम जितने भी काम कर लें उतना ही जो है ना इसके अंदर पोटेंशियल भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। मैं डिपार्टमेंट को ये क्रेडिट दे देता हूँ कि शुरू में हम जस्ट नेचुरल रिसोर्स जो फिशिंग है उसके ऊपर ही रिलाई करके बैठे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमें ये लगा कि इससे न सिर्फ हमारा नेचर डैमेज हो रहा है, बल्कि हम जो है ना उसको कमर्शियल लेवल पे भी नहीं लेके जा रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि हमें जो है ना प्राइवेट फिश फार्मर्स को जहाँ पे इनकरेज करना चाहिए। उस सिलसिले में सर खादिम साहब के ही दौर में पहला जो है ना प्रोजेक्ट न सिर्फ कंसीव हो गया बल्कि उसका ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई थी। मुझे सिर्फ इतना जो है ना इस बात की खुशी है कि उसको मैं आगे लेके गया और उसको एक ऐसे स्टेज पे लेके आया कि फेडरल लेवल पे न सिर्फ इसको अप्रिशिएट किया गया बल्कि फर्दर इंकरेज करके एक ऐसा प्रोजेक्ट हमें दिया गया जो कि जीबी के फिशरीज सेक्टर के अंदर कभी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी। उसी प्राइवेट फिश फार्मर्स को ही अट्रैक्ट करने का रिजल्ट ये है कि आज गिलगित बल्तिस्तान में 200 से ज़्यादा फ़िश फार्मर्स हो गए हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ हमें ऑफ सीज़न फ़िश अवेलेबल है बल्कि जो एनुअल फ़िश कंजम्पशन रेशो था वो भी बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली बढ़ गया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर एक फ़िश फार्म के अंदर पहले बिल्कुल नहीं थे, एक फ़िश फार्म के अंदर अगर 10 लोग भी जो है ना काम कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम वो फ़िश फार्म हो गया है, तो उसको 200 से मल्टीप्लाई कर ले तो मेरे हिसाब से कोई 2000 से ज़्यादा जो है ना यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट से मिला है। गवर्नमेंट सेक्टर को इतना ज़्यादा यहाँ पे काम करना नहीं पड़ा। वजह उसकी ये है कि एक तो अवेयर्ड कम्युनिटी है, वो समझती है कि इसके अंदर थोड़ा सा उनको अगर इंकरेज किया जाए तो वो चीज़ें बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर ने जैसे इनको सीड प्रोवाइड करना था, बाकी फ़िश फार्म जो है ना वो और टेक्निकल असिस्टेंस हमारे जो भी प्रोफेशनल्स हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के, वो देते रहे हैं प्राइवेट फिश फार्मर्स को। उन्होंने जस्ट सीड हमने देना है और टेक्निकल गाइडेंस करनी है, बाकी तमाम बिजनेस जो है ना वो अपना इनका प्राइवेट फिश फार्मर्स का अपना ही है। फेडरल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ डिपार्टमेंट की इंटरेक्शंस उस लेवल पे भी हम लोग चले गए और हमने उस पोटेंशियल को टैप करने के लिए दो तीन चीज़ें हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ये इनपुट दे दें, हम इसको इस लेवल पे इस इतने अरसे में लेके जाएंगे। और मेरी खुशकिस्मती है कि सर खादिम जो मुझसे पहले इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे और मेरे बाद भी जो है ना इन्होंने ही हेड किया, तो एक तसलसल जो है ना हमारे पॉलिसीज़ के अंदर रहा। आज हम इस काबिल हुए हैं कि इस टाइम जो न सिर्फ हम लोकल नीड को पूरी कर रहे हैं, हो सकता है एक आध साल के बाद हम डाउन कंट्री भी जो है ना इसकी हम उसको पर एक्सपोर्ट करना हम शुरू कर लेंगे। अच्छा सर, आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि चूंकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान यकीनन पसमानदा है, मुल्क का दूर दराज इलाका है और यहाँ पर वैलीज़ के अंदर हमारी बहुत सारी आबादी है, तो इस तरह के जो हम अपने जब मैशत को आगे प्रमोट नहीं कर सकते हैं, गुर्बत का खात्मा नहीं कर सकते हैं, तो हम माइग्रेट होकर शहरों की तरफ आ जाते हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए ये जो फ़िश फार्म्स हैं या जो हैचरीज़ हैं, इन इन इस तरफ हम अपना ध्यान देकर हम किस तरीके से हम ख़ुद को बारोज़गार बना सकते हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी जॉब दे सकते हैं, और इस हवाले से कितना सरमायाकारी की ज़रूरत अ, इसमें देखिए, है प्राइवेट। एक तो पहली बात तो ये है कि फिशरी एक ऐसा चीज़ नहीं है कि आप हर जगह उठा के जो है ना फिश फार्म शुरू कर दें। डेफिनेटली ये एक पूरी साइंस है जिसके अंदर आपने उसका इकोसिस्टम भी देखना है, उसका हैबिटाट भी देखना है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आपने देखना होता है। लेकिन इसको जो है ना अगर कंसंट्रेट करें उन एरियाज़ के अंदर यहाँ पे पोटेंशियल है। गिलगित की हम बात कर लें, गिलगित और गिज़र और अस्तोर के अंदर जो है ना और सिकरदू के अंदर हमारे पास पोटेंशियल है ट्राउट का। ग्यामर के अंदर हमारे पास जो देसी मछली हम कहते हैं उसका ज़्यादा पोटेंशियल है। तो हम जो है ना उस साइड पे भी मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट जा रहा है कि जो इंडिजिनस हमारे पास फिशरीज़ थी उसको भी ये प्रमोट करने के लिए। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि इवन आपके इन इलाकों के अंदर भी अगर इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई तो डेफिनेटली जो हमारा टूरिस्ट आता है उसकी कंजम्पशन जो है ना वो हर जगह पे होनी है। वो वैलीज़ के अंदर भी चला जाएगा, उन इलाकों के अंदर भी चला जाएगा जहाँ पे फिश फार्म नहीं बने हैं, लेकिन मछली इधर से सप्लाई होगी। तो वहाँ का लोकल जो होटलियर है या जो भी किसी ने गेस्ट हाउस बनाया, होटल बनाया है, तो सप्लाई इधर से ही होनी है और उसी ने ही जो है ना आगे जाके कंज्यूम होना है। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको अगर विल हो तो हर बंदा जो है ना वो अवेल कर सकता है। यकीनन हम
نئے نئے بزنس کے جو مواقع ہیں وہ گلگت بلتستان میں انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، تو ہم اس طرف بھی توجہ دے کر ہم اپنی معیشت کو، علاقے کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ خادم حسین صاحب، یقیناً آپ اس ڈپارٹمنٹ میں اب ذمہ داریاں آپ سنبھال رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے ارننگ کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے جو اپنے طور پر جو ایک رف سا کیلکولیٹ ہم نے کیا ہے، تو آپ انکم جنریٹ کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر، تو یہ بہت کم ڈپارٹمنٹس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کچھ ریونیو جنریٹ کر سکیں۔ تو اس وقت آپ کے سکسیس سٹوریز کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ عیسیٰ صاحب، آپ نے اس ہماری ایونٹ کو کور کرنے میں آپ تشریف لائے اس ٹھنڈ میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ نہ صرف ڈپارٹمنٹ ہیں بلکہ ہمارے ورکس سیکرٹری صاحب، چونکہ ہمارے پہلے میرے سے پہلے انہوں نے یہاں یہ پروگرام لانے میں بھی اور یہ اس کو کافی آگے لے کے جانے میں ان کا کردار تھا، تو یہ نہ صرف خود تشریف لائے بلکہ اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو بھی لے کے آئے، اور آپ تمام جو اخباری میڈیا کے نمائندگان ہیں وہ سارے تشریف لائے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو آپ نے بات کہی ہے کہ جی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اب ریونیو جنریٹنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف آ رہی ہے، تو اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے سجاد صاحب بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک پودا بویا تھا فیڈرل گورنمنٹ سے پرائم منسٹر کے اسپیشل انیشیٹو میں، اس کے اندر جو ہے وہ مور دین 200 جو ہے نا ان کا ٹارگٹ تھا، اور وہ الحمدللہ ان کا جو ویژن تھا وہ ابھی ہم نے پورا کر دیا، 205 یا 7 کے قریب جو ہے نا وہ پرائیویٹ فارمرز بن گئے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹا سا جو سٹل وہ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ریونیو جنریٹ سے مراد ہماری کیا ہے۔ ایک تو ہم یہ سیدھا سادہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تقریباً جو ہے 5 ٹن مچھلی ہے، اور اس 5 ٹن سے تقریباً ہم نے جو ہے نا وہ 5 کروڑ یا 10 کروڑ جو ہے نا وہ پیسے کما لیے۔ میں اس کو دوسری طرف سے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر 5 ٹن ہے، میں دوسری طرف سے یوں دیکھتا ہوں کہ ہماری یہ جو ہیچریز ہیں، اس ہیچریز کے اندر تقریباً ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ پہلے 2-2.5 لاکھ کے قریب بچے دیتے تھے۔ یہ جو پروگرام سجاد صاحب لے کے آئے تھے، اس میں جو ہے نا اس کو بڑھا کے تقریباً 12 سے 15 لاکھ بچے ہم پروڈیوس کر رہے تھے، کیونکہ ان 200 فارمرز کو جو ہے نا وہ بچے گورنمنٹ نے ہی پرووائڈ کرنے تھے، اور پھر اس کو جو ہے نا ابھی اس سال جو ہے اے ڈی پی کے اندر کافی سارے پروجیکٹ آئے ہیں، تو اس کو ہم بڑھا کے 25 سے 30 لاکھ پودوں تک، یعنی کہ انہوں نے اس کو ٹرپل کیا، تو اس کو ہم نے 12 سے 25 بلکہ اس کو بھی ٹرپل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ اس سے یہ اندازہ کریں کہ جی جو اکنامک سائیکل چلتا ہے، یعنی کہ 200 لوگوں کے پاس اگر 1200 ٹن مچھلی اگر یہ تیار کرتے ہیں، تو وہ پھر پورے گلگت بلتستان میں تمام ہوٹلز وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ جو ہے نا لوگوں کو بیچ سکتے ہیں۔ تو اس سے ہماری رف جو ایک آئیڈیا ہے وہ ہے تقریباً 80-90 کروڑ کے قریب جو ہے نا وہ اکنامک سائیکل میں یہ جنریٹ کرتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک ہڈن جو ریونیو کا ذریعہ ہے جو کہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مچھلی ہم نے لیا تو اس مچھلی کی قیمت جو ہے نا 1000 روپے کے حساب سے وہ کہتے ہیں 5 کروڑ، نہیں، مطلب وہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ 2 سال بعد وہ مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، پورے مارکیٹ میں۔ اب آپ جسٹ امیجن کریں کہ جی پیک ٹورسٹ سیزن میں ایک جو ہے نا وہ مچھلی تقریباً جو ہے وہ 2500-3000 تک بھی جو ہے نا وہ مطلب ہوٹلز میں ان کی بکتی ہے۔ لیکن اگر ہم ایوریج لگا لیں 1200 سے 1500 بھی لگا لیں، اور اس کو آپ ملٹیپلائی کریں کہ جی 30 لاکھ سے، اور اس میں ہم یہ بھی کر لیں کہ چلو 40% جو ہے نا مورٹیلیٹی ریٹ بھی ہو گئے، تو یہ جو انڈائریکٹلی جو ہڈن جو ہم نظر نہیں آتے، یہ اکنامک سائیکل کو چلانے میں یہ فشریز کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بھی مچھلی کے ہمارے ہیچریز ہیں یا ہماری مچھلی کے جو انسٹالیشنز ہیں، لیکس ہیں، جہاں پہ یہ ہم انٹروین کرتے ہیں، وہ ایک ٹورسٹ ہب بن جاتا ہے۔ تو اس کمیونٹی کے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک اور سورس آف انکم بن جاتی ہے، جو کہ ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ ٹرشری انڈائریکٹ جو ہے نا وہ ٹورسٹ آتے ہیں، آ کے جو ہے نا بے تحاشا نہ صرف وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن مطلب جو ٹرانسپورٹ چلانے والے ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، وہاں پہ اگر کسی نے کوئی چھوٹا موٹا ہوٹل بنایا ہے، چائے والا ہے، بسکٹ والا ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ہم نے یہ جو ایک کمیونٹی پارٹیسپیشن کا جو گلگت بلتستان میں ایک وہ ہے، وہ پھر میں سجاد صاحب کی ہی وہ دے دوں گا مثال
مثال दे दूंगा कि वो जब फॉरेस्ट में थे तो वो जो ट्रॉफी हंटिंग को उन्होंने काफ़ी आगे लेके गया था। इधर आके वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाली जो है ना वो भी इधर इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट अभी वो करवा रहे हैं। यानी कि बहुत सारे जगह जो कि गिलगित बल्तिस्तान में जो लेक्स हैं, हाई एल्टीट्यूड लेक्स हैं या इन्वायरमेंटली कोई ऐसे स्पेशल जगह हैं, उसको हम स्पेशल फिशिंग जोन डिक्लेयर करके कम्युनिटी के साथ मिल के उसमें जो उसको हम जो लाइसेंसिंग करते हैं उसको लाइसेंस अच्छी खासी रकम के साथ और फिर उसके 80% उस कम्युनिटी को जाता है। तो ये एक मल्टी जो है ना मतलब सिर्फ एक जरिया नहीं है इसकी इनकम का, यानी ट्रॉफी हंटिंग की तरह ये एक नया एक रोजगार का जो है ना वो जरिया जो है ना वो हम बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एक वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं किचन एक्वाकल्चर के नाम पे। यानी कि हमारे पास जो कार्प की मछलियां हैं वो बड़ी स्टडी होती हैं, बड़ी सख्त जान, और उसके लिए ये जो ट्राउट की तरह मतलब रनिंग वाटर और डीओ की सर्टन मकदार नहीं चाहिए होती। वो स्टेगनेंट वाटर में भी काफ़ी अरसे तक वो रह सकता है, वो ठंडे गर्म पानी में भी वो उसके लिए इतना सेंसिटिव उसमें रह सकता है। तो उसको जो है ना हम चाहते हैं कि जी ख़वातीन को मतलब छोटे छोटे जो है ना किचन टाइप वो दे दें, वो अपने किचन वेस्ट से या थोड़ी सी जो है ना फीडिंग से वो कम से कम जो अपने घर में बच्चों के लिए प्रोटीन का जो है ना वो जो रिक्वायरमेंट है वो वहीं घर से पूरा कर लें। तो जैसे सजाद साहब ने अभी बता रहे थे ना कि जी एम्प्लॉयमेंट का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, रेवेन्यू बनने का बहुत बड़ा ज़रिया है, बिज़नेस का ज़रिया है, टूरिज़म का है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस सेक्टर को प्रमोट किया जाए, इस सेक्टर को मज़ीद जो है ना हम सूबाई हुकूमत के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने खुसूसी तवज्जो दे के खुसूसी ग्रांट दिए हैं, खुसूसी जो है ना वो स्पेशल प्रोजेक्ट्स दिए हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में आप देखेंगे आइंदा चंद सालों में एक बहुत आपके पास सर 3 बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, फिशरीज है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है। तो इस वक्त तीनों डिपार्टमेंट्स का अगर हम मुआवजा करें तो अर्निंग का जिस तरह फिशरीज डिपार्टमेंट है, बाकी डिपार्टमेंट कहाँ खड़े हैं? वो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो तीनों ही डिपार्टमेंट इसको हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल सेक्टर और इकोनॉमिक सेक्टर के बीच में ये फॉल करता है। और ये फिशरीज डिपार्टमेंट जो फिशरीज सेक्टर जो है वो ज़रा स्पेशलाइज्ड है। एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का जो है ना वो हर आदमी इसके साथ मुंसलिक है। तो इतना मतलब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस तरह से इंटरवीन करें कि हर आदमी को उसका बेनिफिट मिले। हमारे डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स होती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो चाहे वो लाइफ स्टॉक में हो। फिर साथ ही साथ जो है ना वो एग्रीकल्चर एजुकेशन और लाइफ स्टॉक में एजुकेशन भी, अवेयरनेस भी, और साथ साथ प्रिवेंटिव मतलब क्यूरेटिव जो है ना वो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। जी नाजरीन, कारगन आला में हम मौजूद हैं और इस वक्त ठंड की इंतहा है, लेकिन यहाँ पर आए हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जोश और जज्बा देखकर ठंड हमें इतनी महसूस नहीं हो रही है। इकराम हुसैन साहब डीडी फिशरीज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कारगिल के हवाले से आप हमें क्या बताएंगे? सर, आज की ये जो एक्टिविटी है फ़िश ब्रीडिंग सेरेमनी और इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक सॉर्टिंग और एक फ्राई काउंटिंग जो मशीन है उसके हवाले से हमने एक एक्टिविटी रखी थी। और स्पेशली ये डेमोन्स्ट्रेशन हमने दिखाना था कि कराकुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जो फिशरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं तो इनके लिए एक स्पेशल एक्टिविटी थी। और ये एक्टिविटी जो है फेडरल गवर्नमेंट का हमारे पास PSDP फंडेड एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हमने ट्राउट फिश की ब्रीडिंग इनको दिखाई है, उसके बाद हमने एक सॉर्टिंग और एक फ्राई काउंटिंग मशीन्स हम दिखाएंगे। फिर दूसरी जो एक्टिविटीज़ हमारी डेली रूटीन की होती हैं, हमने तकरीबन 8 हैचरीज हमने इस्टेब्लिश की हैं। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने 8 हैचरीज हमने इस्टेब्लिश की हैं और तकरीबन 20 लाख तक फ्राई हमने फ़िश फार्मर्स को सेल करना है। और इस प्रोजेक्ट की एक ख़ास एक्टिविटी ये है कि इस प्रोजेक्ट के तहत फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस के हवाले से हमने तकरीबन 218 फ़िश फार्मर्स को लूप में लिया है। 218 फ़िश फार्मर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। गेम फिशरीज डेवलपमेंट के हवाले से भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो फिर ये जो इस साल की जो फ़िश ब्रीडिंग जो इनॉग्रेशन ऑफ फ़िश ब्रीडिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो आज हमने स्पेशली ये प्रोग्राम था हमने कराकुम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। हम आज यहाँ पे आए हुए हैं तो हमें सर किराम ने हमें यहाँ पे फील्ड का विज़िट करने का हमें बताया था। हम यहाँ पे आए हैं। हमने पढ़ा तो ज़रूर था फ़िश के बारे में, इनकी ब्रीडिंग के जो जितने भी ड्यूरेशंस होते हैं किस तरह करते हैं, लेकिन आज प्रैक्टिकली आपको देखने को मौका मिला। बिल्कुल आज प्रैक्टिकली यहाँ पे देखने का हमें मौका मिला। हम शुक्रिया अदा करते हैं इनका और आपका भी। यकीनन नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए यहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए एक गिलगित बल्तिस्तान
खुद एक तजर्बा की हैसियत रखती है। तो कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आज यहाँ पर इस तमाम तर एक्टिविटी को देखने के लिए आए हैं, तो यकीनन इनके लिए भी एक खुशगवार हैरत होगी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। ये ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो विज़िट हमारा रहा यहाँ पे। मेरा नाम शहनाज बेग है, कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ मैं, एनिमल साइंसेस की, और मैं 5th सेमेस्टर की हूँ। हमारे साथ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। तो ये जो है हमें थियोरेटिकली पढ़ने से पहले प्रैक्टिकली हमें देखने को मिला, इसलिए मैं ख़ुद को बहुत लकी समझती हूँ कि आज हमें फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ पे इनवाइट किया। बहुत ही अमेजिंग हमारा जो विज़िट था वो रहा यहाँ पे। प्रैक्टिकली मैंने खुद परफॉर्म किया और बहुत ही मज़ा आया। जी नाज़रीन, हमने आज के इस प्रोग्राम में आबी हयात के हवाले से हमने बात करने की कोशिश की, और आबी हयात से मुतलिक गिलगित बल्तिस्तान में किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जो कुछ भी हो रहा है, और किस तरीके से हम अपने इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और यकीनन मछली जो है इंसानी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है, और इस अहम हिस्से को हम, इसकी पैदावार को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसकी अफजाइश नस्ल हम किस तरीके से कर सकते हैं, और इसके लिए किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, और मछली के कारोबार को हम फ़रोग़ देकर हम अपने घर की गली मोहल्ला शहर और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मईशत को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, और हम अपनी मदद आपके तहत हुकूमत पर, सरकार पर बोझ बने बग़ैर हम किस तरीके से ऐसे फ़िश फार्म्स और हैचरीज़ को डेवलप करके हम अपने मईशत को हम और कारोबार को हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो इस हवाले से हमने प्रोग्राम करने की कोशिश की। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में मछली की अफजाइश के हवाले से, मछलियों की यूँ तो पूरी दुनिया में हज़ारों अक़साम है, जिनमें से बहुत सारे अक़साम गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाती हैं, और सर्द पानी के अंदर कौन कौन सी अक़साम जो है वो सर्वाइवल उनकी हो सकती है, और इस हवाले से यहाँ हमने बात की। और यकीनन बहुत बड़ा पोटेंशियल है गिलगित बल्तिस्तान में मछली को प्रमोट करने के हवाले से, मछलियों की अफजाइश नस्ल को आगे बढ़ाने के हवाले से। तो नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम हवाले गिलगित बल्तिस्तान को वक्त इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली मोहल्ला शहर से व मुल्क को शाद और आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।